While preparing for competitive exams, does it really matter how many hours you're putting in? This is a major issue that a lot of students are facing without even knowing about it. हम लोग अपनी पूरी प्रिपरेशन आवर्स के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, but it is probably not the most efficient method of measuring your performance, measuring how well or how badly are you preparing for an exam. I will be talking about two things today in this session. One is Parkinson's law, which explains in detail about the connection between your work, आप क्या करते हैं, and the time, the amount of time that you're going to spend on that work. And secondly, I would also want to talk about my own personal experience with respect to studies and time, and whatever I learned in the past 8 to 10 years of my teaching experience, studying experience, all these experiences, what have they taught me, and what exactly can I teach you through this session out of my personal experience. तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर पार्किंसंस लॉ पे डिटेल में आएंगे. बट बिफोर दैट, पार्किंसंस लॉ की एक लाइन बता देता हूँ, विच बेसिकली समराइजेज एंड इट विल मेक यू interested in the entire law as well. It came out in 1955 and it said that work expands to fill the available time for its completion. मतलब जो काम है वो expand करता है according to the amount of time that you feel that you have to complete that work. अगर तुम्हें लगता है कि कोई काम कंप्लीट करने के लिए 1 दिन है तो 1 दिन में कर लोगे. अगर तुम्हें लगता है वही काम कंप्लीट करने के लिए 10 दिन है तो फिर वो वर्क एक्सपैंड कर लोगे और 10 दिन में आराम आराम से करोगे. दिस इज व्हाट पार्किंसंस लॉ सेज. आई विल बी टॉकिंग अबाउट पार्किंसंस लॉ येट अगेन. मैं फिर से वापस आऊँगा, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे पहले आ जाते हैं बिकॉज दैट इज मोर सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो आई attempted 2 interviews in civil services UPSC. I attempted 2 interviews in RBI Grade B exam. I also cleared SBI PO examination and worked in SBI for a while. There are 2 questions that come to my mind when I think about these achievements as well as so-called failures. Number 1, how could I achieve all of this? मैं कैसे ये सब achieve कर पाया? Because going to the level of interview in RBI as well as UPSC is not simple. It's not easy. It takes a lot of time for a lot of students. कुछ लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं वहाँ तक. फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. तो अचीवमेंट्स के पीछे के राज क्या थे, रीजंस क्या थे? बट एट द सेम टाइम, बिकॉज आई कुड नॉट क्लियर दीज 2 एग्जाम्स अल्टीमेटली, व्हाई कुड आई नॉट अचीव सक्सेस इन दीज 2 एग्जाम्स? तो ये 2 क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े ऑब्वियस हैं, बड़े सिंपल हैं, येट probably very difficult to answer. तो मैंने सोचा कि इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया मैंने that I could achieve or reach to the level of interview in these 2 very difficult exams, but at the same time मैं क्यों finally इन एग्जाम्स को complete या clear नहीं कर पाया. Number 1, how I could achieve the feat of reaching the interview was, number 1, by studying more, by giving more energy and trying to learn more and more about these exams, about the syllabus and the content of these exams. It's very simple. मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इन एग्ज़ाम्स को क्लियर, इन एग्ज़ाम्स की मल्टीपल स्टेजेस को क्लियर कर पाया, टू पुट इट मोर क्लियरली, टू पुट इट मोर एक्यूरेटली. ओके, इन प्रीलिम्स एंड मेंस आई फोकस्ड a lot more on learning. जितना भी मेरे पास समय था, I focused a lot on learning more and trying to build the ability to be able to get more marks, as many marks as possible. I was completely focused upon that. So that is how I cleared prelims and mains and reached the interview of these 2 exams multiple times. But at the same time, now the question comes. So this question is probably answered by studying more, by giving some tests. I was able to clear multiple levels of these 2 exams. But then the second question comes कि अच्छा, इतना ही अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, इतना ही efficiently, effectively पढ़ रहे थे, तो एग्जाम्स क्लियर क्यों नहीं हुए? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क. हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग भी इसी स्टेज पे हों. सो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ. एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, that I was constantly measuring my performance based upon the amount of time, number 1, that I was giving on that subject or on those subjects, and I failed
to understand the importance of doing something that actually matters, but I was doing something that I felt matters. I'll give you an example to understand this more deeply. अब जैसे मेरे पास 3 घंटे हैं फॉर एग्जाम्पल, आई कैन मेक टू डिसीजंस. आई कैन ईदर टेक अ टेस्ट ऑफ 3 आवर्स टू चेक कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से मुझे कितना याद है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड द सेकेंड ऑप्शन दैट आई हैव इज टू स्पेंड रीडिंग फॉर दीज 3 आवर्स. मैं पढ़ने में टाइम लगा सकता हूँ कि यार मुझे लगता है बहुत सारा सिलेबस अभी पेंडिंग है, बहुत सारा करंट अफेयर्स पेंडिंग है, सो लेट मी रीड rather than trying to revise whatever I've read, or rather than trying to take tests of whatever I've read. So these are the two options I have. If most of the time you are going back to reading more and more, that means you are automatically giving more importance of your time to reading. और आप हमेशा टाइम के फ्रेम में सोच रहे हो. क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार 3 घंटे मैं पढ़ लूँगा तो मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा. तो अब मैं 3 घंटे को बहुत वैल्यू कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली, बिकॉज मुझे लग रहा है ये 3 घंटे वापस नहीं आएंगे या ये 3 घंटे आगे नहीं मिलेंगे. बट अगर मैं थोड़ा और लॉजिकली सोचूं तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने जो पढ़ा है, वट एवर आई हैव रेड, डू आई रिमेंबर इट? कैन आई यूज़ इट? कैन आई अप्लाई इट इन क्वेश्चंस? कैन आई राइट आंसर्स बेस्ड अपॉन दैट? अगर मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये 3 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं या फिर मैं कम यूटिलाइज कर रहा हूँ इफ़ आई एम राइटिंग अ टेस्ट. इनफैक्ट आई वुड थिंक इन अनदर वे कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ. आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ एज रेलिवेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट, मोर रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं इन 3 घंटों को यूज़ कर रहा हूँ टू गेट अ रियलिटी चेक वेदर I remember whatever I've read, or whether I'm able to recall and write answers based on whatever I've read or not. तो सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या मैं अपनी पढ़ाई को टाइम के फॉर्मेट में मेजर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. हाउ डू आई चेक दैट? आई कैन चेक दैट वेरी क्लियरली बाय हाउ एम आई डिवाइडिंग माई डे, हाउ एम आई, व्हाट इज़ माई फोकस एरिया. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 2 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया. सवाल ये है ही नहीं, तो हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं और जवाब ही गलत ढूंढ रहे हैं. सवाल ये है कि एक दिन में आपने एक सब्जेक्ट का कितना पार्ट पढ़ा. असली क्वेश्चन वो है. असली क्वेश्चन ये है ही नहीं कि आपने कितने घंटे पढ़ा. असली क्वेश्चन है कि आपने एक दिन में एक सब्जेक्ट का कितना पढ़ा, या एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का जो भी पढ़ा उसमें से कितना याद है. वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है. दैट इज़ अ मोर रेलिवेंट क्वेश्चन. द मोमेंट यू चेंज योर माइंड, द मोमेंट you turn that knob and start thinking along those lines, automatically आपको realize होगा कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पा रहे हो, कम एफर्ट से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हो. That is what I missed, and that is the reason that although I cleared stage 1, 2 of these exams multiple times, I could finally not get a good enough rank in both these exams, because I was not able to turn the knob in my mind and think in terms of achievement, real achievement. I was always thinking in terms of the time that I'm spending, the amount of reading that I'm doing in that time. Because जब आप टाइम के फॉर्मेट में सोचते हो तो आप ट्राई करते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, क्योंकि टाइम कम है यार, इतने ही घंटे हैं, इतने घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, है ना. जैसे कि अगर कोई तुम्हें 2 मिनट देगा खाना खाने के लिए तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा ठूस लोगे, लेकिन अगर तुम्हें आधा घंटा मिलेगा तो तुम बोलोगे आराम से खाते हैं, बिकॉज इट्स इनफ टाइम फॉर यू. बट अगर दूसरा क्वेश्चन पूछो कि यार खाना मुझे न्यूट्रिशन के लिए खाना है, देन टाइम डजंट मैटर. चाहे आपको कोई 2 मिनट दे, चाहे 30 मिनट दे, आप बोलोगे यार आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक बाय दिस रूल, मुझे अच्छे से खाना है, दैट इज़ माई फोकस एरिया. 2 मिनट में भी मैं सारा ना ठूस के उतना खा लूँगा जितना मैं डाइजेस्ट कर सकूँ, जितना मैं हजम कर सकूँ, और इसको यूज़ करके अगले 3-4 घंटे के लिए या अगले कुछ समय के लिए मैं काम कर सकूँ. सो इट इज़ अ डिफरेंस इन द मेंटल मेकअप दैट वी हैव. वी नीड टू चेंज दैट. अगर ये चेंज कर पाओगे कि हर चीज़ को टाइम में ना तोल के, हर चीज़ को अचीवमेंट के टर्म्स में, आउटकम के टर्म्स में तोलना शुरू कर दोगे, मेजर करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस. ओके,
एंड द डिफरेंस इज एक्चुअली ह्यूमंगस। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेज 1 क्लियर कर देते हैं, फेज 2 नहीं कर पाते, फेज 2 क्लियर कर देते हैं, फाइनल फेज 3 नहीं क्लियर कर पाते, बिकॉज दिस वेरी स्मॉल डिफरेंस, वेरी स्मॉल चेंज ऑफ माइंड सेट क्रिएट्स अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन 2 और मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो ये पर्सनल स्टोरी हो गई, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई टाइम को लेके। अब आ जाते हैं दूसरे पे, जो कि है पार्किंसंस लॉ। मैंने आपको बताया पार्किंसंस लॉ ये बोलता है कि वर्क एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट वी हैव। तो अगर हमारे पास ज़्यादा समय है तो हम ऑटोमेटिकली ज़्यादा टाइम उसमें लगाने लगते हैं। अब आपके पास टाइम बहुत है, द रियलिटी इज़ दैट, हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास टाइम कम है, बट द रियलिटी इज, लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स नॉट लिव इन आवर ओन ड्रीम्स। द रियलिटी इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, स्पेशली राइट नाउ। चाहे आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यू ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, यू नेवर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है ऑलरेडी इन एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं अपनी, जब भी मैं अपनी पढ़ाई को टाइम के टर्म्स में मेजर करने की कोशिश करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट और आई कीप एक्सपैंडिंग माई स्टडीज़, क्योंकि सबकॉन्शियसली मुझे पता है कि मेरे पास टाइम है। मैं अपने आप को बार बार बोल रहा हूँ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बट एक्चुअली टाइम बहुत है, एंड यू नो दैट, अ पार्ट ऑफ यू नोज दैट। सो यू कीप एक्सपैंडिंग योर स्टडीज़, क्योंकि आज 2 घंटे में जितनी पढ़ाई करनी थी नहीं हुई, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। यू नो दैट, अ पार्ट ऑफ यू नोज दैट कि ये मैं कल भी कर सकता हूँ, मेरे पास समय है, बिकॉज यू स्टिल हैव दैट टाइम इन योर हैंड, एंड you deep inside you know that you keep expanding your work because you still have unlimited time according to a part of you. Notification भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं एग्जाम कब होगा, so in your mind you have unlimited time, because you have unlimited time you keep expanding your work. आप अपनी पढ़ाई को एक्सपैंड करते रहते हो, जितना समय उसको देने की ज़रूरत नहीं है उतना, उससे ज़्यादा समय देते रहते हो। व्हाट इज़ द वे टू गेट आउट ऑफ इट? ये पार्किंसंस लॉ कहता है कि जितना समय ज़्यादा होगा आपके पास, ऑटोमेटिकली आप उतना काम बढ़ाते जाओगे अपनी ज़िंदगी में, काम उतना ही करोगे लेकिन वो काम को फैलाते जाओगे, है ना, आपने रायता फैला दिया जैसे, इट्स लाइक दैट। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है टाइम को बाहर निकाल देना, टू थ्रो टाइम आउट ऑफ द विंडो, टू नॉट हैव टाइम एज वन ऑफ योर कैलकुलेशंस। टाइम को आपने बाहर फेंक दिया, अब आप दूसरा एलिमेंट लेके आओगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, हाउ इफेक्टिव इज इट इन माई प्रिपरेशन, हाउ यूजफुल इज इट इन माई प्रिपरेशन, वट एवर आई लर्न फ्रॉम वट एवर आई हैव स्टडीड, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज इट इन द पास्ट ईयर्स। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली जो आप पढ़ रहे हो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा, ज़्यादा यूजफुल लगेगा, और एग्जाम में एक्चुअली उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ भी कर पाओगे। So that is how you can play around with Parkinson's law and try and rewire your mind so that you are actually getting more out of the limited time that you have, or so-called limited time that you have. You actually have a lot of time, but किस तरह से ज़्यादा आउटकम निकाल के लाना है अपनी ज़िंदगी में, पढ़ाई कम करके या फिर पढ़ाई नॉर्मल करके, एफर्ट को मिनिमाइज करके, by tricking your mind or by changing your mindset, not focusing upon time, throwing it out of the window and bringing in other variables. जो मैंने पढ़ा है वो कितना रेलिवेंट है, उसमें से मुझे कितना याद है, उसमें से मैं कितने क्वेश्चंस और आंसर्स एक्चुअली लिख पाया या आंसर कर पाया, पास्ट ईयर्स में इस चैप्टर में से या इस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने पढ़ लिया है, एम आई एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस और नॉट। ये जब क्वेश्चंस आप पूछना शुरू करोगे, विच आर मोर रेलिवेंट, which are going to be more important in determining whether you clear the exam, or you get very high marks in the exam, or you get average marks in your exam. जब ये चेंज लेके आओगे, automatically you will start feeling the difference. Automatically, hours will not matter anymore. Automatically, you will stop thinking about time and you will start thinking about outcomes. कि कितना मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे आउटकम कितना निकल रहा है। It's like the government फोकसिंग ईदर ऑन एक्सपेंसेस और ऑन आउटकम्स। जैसे अभी भी हमारी सरकार एक्सपेंसेस पे फोकस्ड है कि हमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया था, जितना बजट में एक्सपेंडिचर सोचा था करेंगे, क्या हमने उतना किया कि नहीं किया। इफ यू हैव डन इट देन यू हैव डन अ गुड जॉब, विच इज़ अ वेरी बैड मेट्रिक, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जो हमने खर्चा किया उससे फ़ायदा क्या हुआ,
Was it actually useful in the development of the country or not? अगर यूजफुल नहीं था तो वो खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों किया? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दैट शुड बी द क्वेश्चन. So it's a very similar question that you can ask from yourself. Ultimately, it's a change in your mindset. It's a change in habit. We have been habituated to thinking about studies, in terms of time. Stop thinking about them in terms of time. Start thinking about them in terms of outcomes. What are the outcomes? मैंने जो सीखा उसमें से कितना याद है? Am I able to write questions and answers based upon this? Am I able to answer MCQs based upon this? Past years में कितने questions आए हैं, किस तरह के questions आए हैं, क्या ये सब chapters पढ़ने के बाद am I able to answer those kind of questions well or not? These are the questions that you start asking yourself. Automatically, you will feel more efficient, you will feel more effective, you will feel more calm, you will feel more in control of your prep. So stop focusing upon hours, start focusing upon outcomes. That is going to define the minute difference between success and failure. That's all from my side for this session. I hope it was useful. कोई doubt है, कुछ कहना चाहते हो, if you want me to talk about something else, you can very well put it down in the comment section below. I will see you again. Keep studying hard. All the best. Bye bye. Jai Hind.